There is not a single study which details exactly how this works. हाँ, it But is. this is so fascinating because people who use collagen they swear by it. There is just so much confusion कि कौन से type का protein use हो रहा है The collagen source protein. of collagen is different, the type of collagen is different, who is consuming is different. There are so much of heterogeneity. You're right. This is the only reason why collagen is being talked about so much, because people are using it and sharing their experiences. Otherwise, I would really like to see many more researches which are homogeneous. अगर आप किसी से बात करो, somebody who is taking collagen supplement and suppose they are happy, they will tell you their joints have improved, their skin has improved, their nails and hair have improved. So they will tell you their health is improved in multiple ways. मार्केटिंग जब सब लोग करते हैं तब वो उस पर्टिकुलर स्टडी के बेसिस पे अपने डिफरेंट सोर्स के कोलाजन की मार्केटिंग पूरी कर लेते हैं. तो डिफरेंट सोर्सेज हुए, जैसे पिग्स हैं एंड काउज हैं, हाँ, बेचारे लाइक chickens हुए. बोवाइन या जो चीजें सबसे इजीली इन लोगों को मिलती होंगी वही यूज करते होंगे. Sipping bone broth, bone marrow broth better for collagen development than the rest of the marketing gimmicks, or is it actually just something जो हवा में उड़ाई जा रही है बात? अगर आप भी मेरी तरह हैं तो विद इन द लास्ट 2-3 मंथ्स इतने कोलाजन के एड्स आए होंगे आपकी स्क्रीन पे कि ओ मैंने कोलाजन लगाया, मैं तो 20 इयर्स दी एज हो गई, दिस दैट, उल्टा सीधा कुछ भी बोलते हैं लोग. अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको स्किन में इंजेक्शन वाला कोलाजन लगाना है, आप खाने वाला कोलाजन लगाना है, या फिर आपको क्रीम वाला कोलाजन लगाना है, क्योंकि आपको ऐड तो आ रहा है कि अरे वो जो टैबलेट है वो खा लेते हो, सोडा में मिला सोडा बन जाएगा, टेस्टी भी लगेगा, बट आप कहीं पे यूट्यूब पे देख रहे हो कि कोलाजन वाले फिलर्स बेटर होते हैं, तो आप मेरी तरह एकदम कंफ्यूज्ड हो. ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में भी चल रही थी. एंड देन आई रियलाइज कि विटामिन सी के साथ कोलाजन यूज करने का तो बहुत ही अलग ट्रेंड है, विच लॉट ऑफ गर्ल्स आर फॉलोइंग एंड पीपल स्वेयर बाय इट टू द पॉइंट दैट दे से कि विटामिन सी प्लस कोलाजन की क्रीम्स आर द ओनली थिंग यू नीड फॉर एन एंटी एजिंग रूटीन, विच मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस टू मी. बिकॉज अगर इतना ईजी होता तो सब लोग क्यों नहीं यूज कर रहे हैं उसे? तो ये तो रेटिनॉल से भी ज्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट होना चाहिए था. और अगर ये इतना अच्छा होता है कोलाजन फॉर एंटी एजिंग, तो बोटॉक्स की क्या जरूरत है हम लोगों को? क्योंकि बोटॉक्स भी तो एक्चुअली में आपको डीएज कर देता है, हाइफू भी आपको डीएज करता है. डॉक्टर्स हमेशा इंडिया में all dermatologists recommend HIFU and Botox as the perfect procedure combo for anti-aging. कोलाजन फिलर्स क्यों नहीं रेकमेंड करते हैं लोग? और कई लोग कहते हैं कि आप प्राइमोर्डियल बन जाइए, आप हड्डियां गला के उसको सूप बना के पीजिए, बोन ब्रॉथ पीजिए, तो you will get collagen increase in your body. But doctors say that there's no reason that bone broth will actually increase collagen in your body. It's just so damn confusing. These are all the things that I was thinking about जब मैं podcast shoot कर रहा था. So if you are interested in any of these things, stick around till the end, because trust me, you need to know what the truth about collagen is if you want to feel good in your own skin. If you don't figure out what the deal of collagen is, then you're going to be in the phase where you have FOMO, fear of missing out, कि अरे मैंने collagen miss out कर दिया, वरना आपको पूरे टाइम लगता रहेगा कि collagen मेरे को लगाना चाहिए था. And on the other hand, if you do stick till the end with us in this podcast, then maybe you will find out कि collagen is not the fix-all substance that people claim it is. However, one thing is for sure, people who use collagen, they sure as fuck, they stand by it so hard. They say that it is the fucking magic ingredient जो उन लोगों को मिल गया है, जो जड़ी बूटी ढूंढ के ले आए हैं वो लोग. So let's find out कि actually में होता क्या है कोलाजन से. There's always a price that's associated with being youthful and looking youthful. Brian Johnson से पूछ लो. More specifically, cosmetic surgery का price. Do you think collagen injections के prices are worth it, or are they just a scam? Collagen injections are just like other filler injections. अच्छा. जैसे hyaluronic acid fillers हैं, फैट फिलर्स हैं, वैसे कोलाजन फिलर्स हैं. अगर हम अपने फेस को प्लम्प करने के लिए या कहीं वॉल्यूम देने के लिए, यूथफुलनेस इंक्रीज़ करने के लिए, स्किन को इलास्टिक ज़्यादा बनाने के लिए, फर्मनेस के लिए कोलाजन लेते हैं मान लो, तो नंबर एक बात तो ये है कि सारी लाइंस उससे चली जाएंगी, ऐसा नहीं होता. Really? और दूसरी बात ये है कि जैसे बॉडी नेचुरल कोलाजन को डिप्लीट करती है, वैसे ही जो हम कोलाजन बाहर से लगा रहे हैं उसको भी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम डिप्लीट करेगी, ख़त्म करेगी. तो आपको वो बार बार लेने हैं इंजेक्शंस. तो कई बार ईयर में 2 या 3 बार, कभी कभी 4 बार भी ये इंजेक्शंस लेने पड़ सकते हैं. अच्छा. एंड फिलर्स ऑलवेज कम विद अ प्राइस, because this is something which is introduced inside your skin. It stays in your skin. So there are Okay. certain norms which are to be followed for those products who stay in the skin, I mean which are introduced in your body. तो वो definitely महंगे आएंगे.
अच्छा, नी सर्जरीज़ में नी में कोलाजन के इंजेक्शन दिए जाते हैं फॉर ऑर्थोपेडिक रीज़न्स, और जब फेस पे प्रोसीजर्स होते हैं तो उसमें डायरेक्टली ऑन द स्किन फिलर्स दिए जाते हैं। हाँ, फिलर्स की डिफरेंट डेप्थ्स होती हैं, ओके। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फिलर एंड द रिजल्ट व्हिच वी वांट। ओह रियली? हम्म तो इफ आई जैसे पुट इट हियर इंस्टेड ऑफ हियर, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द नहीं, कोलाजन यूजुअली विल बी डन इन द surface of dermis only, in the plane of dermis. So collagen is given in the skin only. ओके, तो एपिडर्मिस में ही देते हैं। नहीं, एपिडर्मिस से नीचे डर्मल लेयर में। Okay, we have a reel about how retinol works, and we have this really cool diagram there, which you will be shown on the screen right now. तो उसमें you can see the basal cell layer. उसके जस्ट नीचे उसके जस्ट नीचे दिया जाता है कोलाजन, क्योंकि उसके नीचे ही फाइब्रोब्लास्ट सेल्स से फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, यस। उससे बाइंड करके कोलाजन रहता है, which makes your skin look youthful and like glowing and all फाइब्रोब्लास्ट that. सेल्स इन द बॉडी और create इससे sorry, make collagen. they create They and make collagen. make collagen. Supplements और injections, इन सब चीज़ों से जब कोलाजन दिया जाता है तब it is the most common hypothesis that they work because they actually bind to the fibroblast cells. This applies most potently with the tripeptides, with the अच्छा, peptide substances जो कोलाजन वाले होते हैं, जिसमें मेनली 3 है, हाँ। प्रोलीन, arginine और glycine. What's Sometimes the it is difference? hydroxyproline. These are 3 different types of amino acids. Okay. इनका जो ये ट्रायो है, ये कोलाजन फॉर्मेशन को, कोलाजन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये कोलाजन फाइब्रोब्लास्ट जब कोलाजन बनाएगा तो दीज एक्ट एज रॉ मटेरियल्स। तो जब ये अबंडेंस में होंगे तो मोर एंड मोर कोलाजन कैन बी फॉर्म्ड। अच्छा, I'm going to step away from the line of questioning for a moment because बहुत important चीज़ just struck me. There's actually 4 types of collagen, है ना? And one of them is for your joint pains, for your tendons. Not pains. See, collagen is the most abundant protein found in the body. So collagen 1, 2, 3, 4. Collagen 1 is most importantly found in the skin. तो ऐसे ही 2, 3, 4 की different places हैं। हाँ, तो whenever you take supplements for collagen and you're buying something, the first thing you need to check is कौन से type का collagen है ये, right? अच्छा, ऐसा? Because obviously because अगर आपने वो joints वाला collagen ले लिया then it won't help you look glow. So the thing is कि collagen as such जो बड़ा एक प्रोटीन है, वो पूरा का पूरा आप डाइजेस्ट कर लो और वो पूरा अंदर चला जाए और आपकी पर्टिकुलर जगह पे पहुंचे, ये बहुत मुश्किल है। You mean ऐसा बहुत मुश्किल है कि आप कोलाजन खा रहे हो एंड देन हाँ। सीधे आपके डाइजेस्टिव ट्रैक से वो डायरेक्टली आपके चेहरे पे पहुंच जाए, ये नहीं मुश्किल है। जाएगा, बिकॉज जैसे ही आप कोई चीज़ खाना शुरू करते हो, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ टू स्टमक टू डुओडेनम, जेजुनम, उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। देर आर सर्टन एंजाइम्स एट सर्टन प्लेसेस विच स्टार्ट डाइजेस्टिंग द थिंग्स। अब कोलाजन बीइंग अ प्रोटीन, उसका डाइजेशन मेनली स्टमक में होगा, डुओडेनम में होगा। तो ये वाला डाइजेशन कौन सी अमीनो एसिड्स को ले रहा है? तो अगर पहले ऐसा माना जाता था कि सिंगल अमीनो एसिड्स डाइजेस्ट होके बनते हैं और फिर वो असिमिलेट हो जाते हैं, यानी वो अंदर बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। अभी क्या है कि न सिर्फ सिंगल अमीनो एसिड्स बल्कि ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स भी बनते हैं जो डाइजेस्ट हो जाते हैं, जो ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं। 2 to 10 अमीनो एसिड्स के चेन हो सकते हैं। अच्छा। तो टाइप 1, 2, 3, 4 कोलाजन के लिए अलग अलग टाइप बॉन्डिंग ऑफ अमीनो एसिड्स यूजफुल होती हैं। तो जो स्किन में हमें कोलाजन चाहिए उसके लिए प्रोलीन, आर्जीन और ग्लाइसिन वाला ट्रायो चाहिए। तो यू नीड टू लुक फॉर प्रोलीन, arginine and glycine in the supplements that you're taking for Can you glowing really skin. look for them? I mean, I don't know. लोग सच में देखते हैं? हाँ, एक्चुअली देखते हैं because this is a different kind of categorization जो मैं बोलने वाला हूँ, but हाँ, जैसे hydrolyzed collagen है ना, collagen Hydrolyzed, tripeptide. this So is tripeptide. yeah, this is tripeptide. So you can look for these 3 things if your collagen says collagen tripeptide. Hydrolyzed is the word used for digestion of protein, which leads to tripeptides. It's not a different kind of tripeptide. Hydrolyzed means the enzyme is hydrolyzing the protein and then the trio is made. Okay. So it's an enzymatic process. It can be done in 2 ways, either by the enzyme itself or by any microbe. So when you're looking for
collagen in your supplements, you need to make sure that it's the tripeptide kind of collagen, right? Okay. Proline, arginine, and glycine. फिर आप उसमें ये कैसे make sure कर सकते हो कि it's the one which works for your skin and not for your joints? एक्चुअली ऐसा नहीं आप मेंशन कर सकते और ये यूजुअली लोग नहीं पता कर सकते बिकॉज़ आप देखो जब भी आप कोई रिसर्चेस में भी और वैसे भी अगर आप किसी से बात करो समबडी हु इज़ टेकिंग कोलाजन सप्लीमेंट एंड सपोज दे आर हैप्पी दे विल टेल यू देयर जॉइंट्स हैव इम्प्रूव्ड देयर स्किन हैज़ इम्प्रूव्ड देयर नेल्स एंड हेयर हैव इम्प्रूव्ड सो दे विल टेल यू दे हैव देयर हेल्थ इज़ इम्प्रूव्ड इन मल्टीपल वेज जी। तो हम्म। ये डिफरेंशिएशन academically it's good but usually there is a lot of overlapping. To what extent does collagen work for anti-aging? Aging when happens in the skin if you're talking about the skin तो जो कोलाजन का हमारा स्ट्रक्चर है स्किन में जो उसको एक फॉर्मनेस देता है एज के साथ ना सिर्फ वो स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन होता है क्योंकि नंबर ऑफ कोलाजन फाइबर्स डिक्रीज हो जाते हैं बल्कि वो थोड़े स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है वो उतने अच्छे नहीं रहते थोड़ा उनमें रिपेयर की ज़रूरत हो जाती है तो दिस इज़ एजिंग इट कैन बी ड्यू टू एनी क्रोनोलॉजिकल एजिंग और फोटो एजिंग और एनी काइंड अब अगर हम एंटी एजिंग पे जाएं तो हमको ये स्ट्रक्चर बेटर करना है तो कोलाजन अगर ये ट्राइपेप्टाइड्स मिल रहे हैं एंड दे आर रीचिंग द करेक्ट प्लेस तो फाइब्रोब्लास्ट्स कीप ऑन इम्प्रूविंग ऑन द एग्जिस्टिंग कोलाजन एंड दे मेक न्यू कोलाजन फाइबर्स तो जो स्ट्रक्चर ऑफ स्किन है वो टाइटर हो जाएगा फॉर्म हो जाएगा एंड प्रॉबेबली the because of increased hyaluronic acid and it will improve the hydration of the skin also तो जो फाइन लाइंस हैं थोड़े फाइन रिंकल्स हैं वो अपने आप इम्प्रूव हो जाएंगे स्किन की स्मूथनेस बढ़ जाएगी फिर कई लोगों को लगेगा कि उनके पोर्स भी कम हो गए हैं और एक फर्मनेस इलास्टिसिटी स्मूदर यंगर लुकिंग स्किन आती है Just from using collagen supplements and no, correct me if I'm wrong, from increasing collagen in your body, चाहे आप सप्लीमेंट से करें या फिर किसी भी चीज से करें. हाँ किसी भी चीज़ से करें अच्छा, when I was doing research for this podcast, I noticed कि I didn't find any research which told me exactly how and why collagen supplements will work for you. The most common hypothesis was कि your blood vessels absorb the collagen from the digestive system and from there they are delivered to the basal cell layer of the whole skin on your body. But there is not a single study which details exactly how this works. हाँ it But is this is so fascinating because people who use collagen, they swear by it. See, what I want to indicate here is that many studies are actually sponsored by, interested parties. People who are interested, they have their interest in making collagen or they are distributors and so on. We need more researches in this area so that we know how and why this is working, and a lot is yet to be explained. And I noticed something when I was doing my research about this. All the researches are very heterogeneous. Heterogeneous being बहुत अलग अलग parameters हैं. Like, okay, for the people at home, let me explain it this way. If we are studying the forehand of 3 tennis players, let's say me, my friend Mayank, and my friend Tanush, in order for the study to be homogeneous, it needs to be all of us are wearing the same shoes, we are wearing the same racket, we are all wearing the same clothes. Then we can compare our forehands in an equal fashion. Yes. But if I'm wearing like 1 lakh rupees shoes, he's wearing 500 rupees shoes, he's wearing 2500 rupees shoes, मेरे पे बैबलेट का रैकेट है, उस पे हेड का, उस पे विल्सन का, जिनकी फंडामेंटल्स ही डिफरेंट है, then obviously बहुत अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे उस You are स्टडी so के. correct. ऐसे ही मैंने सारी स्टडीज में नोटिस किया कि they don't have any objective parameters by which they judge it, and there's just so much confusion कि कौन से टाइप का प्रोटीन यूज हो रहा है, कोलाजन The source of collagen is different, the type of collagen is different, who is consuming is different. There are so much of heterogeneity. You're right. So the only things that we can actually go by when it comes to collagen is the people who swear by it, and surprisingly there are so many of them. Many of them. This is the only reason why collagen is being talked about so much, because people are using it and sharing their experiences. Otherwise, I would really like to see many more researches which are homogeneous. Which have control groups even. Yes. क्योंकि placebo एक बहुत बड़ा effect play करता है in medical studies. Of course. एंटी एजिंग के लिए बोटॉक्स और कोलाजन में से कौन सी चीज बेटर है? आप ये मत कहना अलग अलग चीजें करती हैं, मेरे को एग्जैक्टली बताना मैं क्या कर रहा हूँ जब मैं 30 साल का हो जाऊँ. बोटॉक्स आपको मोटी मोटी डायनेमिक लाइन से छुटकारा दिलाएगा.
ठीक है। crow's feet, हम्म। frown lines, हम्म। ये वाली lines. But you will also lose the ability to create expressions. सो दैट इज़ वाई बोटॉक्स से जब मैं करती हूँ तो मैं कभी भी मसल की पैरालिसिस नहीं कराती. आई गो फॉर वीकनिंग ऑफ मसल सो दैट आई हैव फाइन एक्सप्रेशंस. हम्म। उतने कोर्स एक्सप्रेशंस नहीं कि किसी को अभी भी खराब लगे कि मुझे अभी भी कितना खराब लग रहा है, बट मेरी मसल यू एक्ट करे बट थोड़ा कम एक्ट करे. If that is an option, सब लोग क्यों नहीं कराते हैं? करा सकते हैं, आई डोंट नो. अच्छा, और वर्सेस कोलाजन के फिलर्स में क्या होता है? कोलाजन एक कंप्लीट स्किन पे एक्ट करेगा, वो मसल पे एक्ट नहीं करेगा. वो आपकी स्किन को फर्म बनाएगा, स्किन को इलास्टिसिटी इम्प्रूव करेगा और स्किन में हाइड्रेशन इम्प्रूव करेगा. तो जो बहुत फाइनर लाइंस होती हैं उनको टैकल करेगा. कोर्स लाइंस विच आर ड्यू टू एक्सप्रेशन एंड विच आर कॉल्ड डायनामिक रिंकल्स विल बी लेस टैकल्ड. उनके ऊपर की स्किन बेटर हो जाएगी तो फिर वो थोड़ी कम दिखेंगे रिंकल्स. बट जो मेजर स्किन मसल का कंट्रैक्शन का कंपोनेंट है वो बोटॉक्स हैंडल करेगा. अच्छा. पूरी स्किन को कोलाजन हैंडल करेगा. अच्छा, तो लाइक द Finer lines lines. and the texture of your skin, Yes. थोड़ी सी खिंचाव, ये सब हाँ. चीजें कोलाजन fillers improve करेंगी. Hmm. But the wrinkles like Gordon Ramsay has, like those wrinkles can only be taken care of by Botox. Yes. So these are actually complementary products then. Exactly. Yes. Have you ever suggested this to a client to get it done? Yeah, see, there are other procedures also which can be done for finer wrinkles. So I usually go for them instead of giving collagen, which is to be given for like sometimes 2, 3, 4 times in a year. I suggest HIFU also to my Acha. patients. So high intensity focused ultrasound, it stimulates the skin to make collagen. So if my skin can make its own collagen by a procedure, I would ask my client to go for that, and after 3 months of this procedure come back to me. Then I'll see how much dynamic wrinkles you have and I'll give Botox for that. That makes a lot more sense than using in the holistic fillers. approach to anti-aging. That makes so much sense. Yes. So जब आप हाइफू दोगे फॉर कोलाजन तब आप उनको कुछ डाइटरी रिकमेंडेशंस भी देते हो क्या? People today, in today's world, people know more about collagen in diet than any of the doctor thanks to the internet. So they give me a list. Doctor, can I eat walnut? Can I eat chia seed? Can I eat kale and spinach and so many things, berries? So I say yes, because everybody knows they increase collagen. So yes, they can use collagen, dietary products which can help boost collagen in the skin. At the same time, they can start using retinol as a night cream. And during the day, I would prefer they use vitamin C serum, which in turn improves collagen on the skin. And also they can use niacinamide and of course sunscreen to decrease photoaging. Acha, is sipping bone broth, bone marrow broth better for collagen development than the rest of the marketing gimmicks, or is it actually just something with jo hawa mein udai ja rahi hai baat? Actually, when I came to know that people are drinking bone broth, I had to look the real reason and how it is made, because me being a vegetarian, I never knew it. What people do, they keep boiling the bone so that the minerals, the calcium and everything comes out, and then they start sipping along with some vinegar, I'm told. So the difference between collagen and bone broth is, see, collagen we were talking, when we give a dietary supplement, usually it is the tripeptide, right? True. So in bone broth, it is not a tripeptide of collagen. It has minerals in it. It has different other things as well as some proteins. So they both are actually not the same. कोलाजन अलग है, जो श्योर शॉट आपको वही ट्राइपेप्टाइड दे रहा है. बोन ब्रॉथ एक कॉन्कॉक्शन है जो कि अलग अलग चीज़ें आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम और डिफरेंट चीज़ें दे रहा है. So there is no proof or correlation There is between no collagen proof and bone actually. broth. हाँ, there are people, there are wellness centers और different websites जो कहते हैं कि bone broth is same as collagen. It can give you a lot of collagen, but I think these two are a bit different. अगर आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ले रहे हो ट्राइपेप्टाइड का, जो टिपिकली आपके कोलाजन को बूस्ट करेगा, तो वो एक श्योर शॉट, एक क्वांटिफाइड चीज़ हो गई. बोन ब्रॉथ तो एक आपने किचन में बनाया है, आपको नहीं पता उसमें क्या क्या Malnourished
एनिमल था, कैसा एनिमल हाँ, था, कोई बीमारी थी एनिमल यस, को, एज कोई ऑफ द चीज़ नहीं पता एनिमल, यस आपको, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। कौन-सा एनिमल था। हम्म। ये हम लोग बात कर रहे थे कि जब कोलाजन डिराइव किया जाता है एनिमल से तब सेम प्रॉब्लम आती है, राइट? कि तो आपको ये नहीं पता सोर्स क्या है उसका, हम्म। है ना? तो फॉर एग्ज़ाम्पल द मोस्ट कॉमन एंड द ओल्डेस्ट पेटेंट दे दैट ह्यूमन्स हैव फॉर कोलाजन प्रोडक्शन इज़ बाय it's in conjunction between an American institution and an actual town in Japan, Mm-hmm. like एक शहर का नाम है पेटेंट पे. There's this particular kind of salmon Mm. that is found in the The city. fish, yeah. Yeah, it swims upstream Okay. apparently, and they decided कि इसको पकड़ के इसमें से कोलाजन निकालेंगे, and they salt the fish like as in pickle it, Mm-hmm. and then they extract the collagen from it. It is the most straightforward way as it is known by them. Mm-hmm. So since only one company has that patent, the problem with that patent is वो सिर्फ फिश के बारे में about that particular species found in that particular town. अच्छा। हाँ, तो दैट्स व्हाई उसके ऊपर जो स्टडीज कंडक्टेड हैं वो दिखाती हैं कि कोलाजन का क्या इफेक्ट होता है, बट मार्केटिंग जब सब लोग करते हैं तब वो उस पर्टिकुलर स्टडी के बेसिस पे अपने डिफरेंट सोर्स के कोलाजन की मार्केटिंग पूरी पूरी कर लेते हैं. तो डिफरेंट सोर्सेज हुए, जैसे पिग्स हैं एंड काउज हैं, हाँ, बेचारे लाइक चिकन्स हुए, बोवाइन या। जो चीज़ें सबसे ईज़िली इन लोगों को मिलती होंगी वही यूज़ करते होंगे. हम्म। तो इट्स रियली रियली डिफिकल्ट टू नो इवन इन कोलाजन सप्लीमेंट्स कि कहाँ से आ रहा है आपका वो प्रोडक्ट, क्योंकि वीगन कोलाजन जो है इट्स नॉट मास प्रोड्यूसेबल येट, क्योंकि उसमें एक बहुत स्पेशल टाइप ऑफ यीस्ट चाहिए होती है व्हिच यू देन अनलीश ऑन टू लाइक चिकपीस, जिसमें से वो ट्राइपेप्टाइड कोलाजन्स डायरेक्टली निकाल के देती हैं. अच्छा। हाँ, however, vegan collagen is much easier to digest than animal-based collagen for some reason. Maybe it's from because it's from plants and humans are uh, ज़्यादा उनकी हुनर होता है plants खाने में. Maybe that's We why. are made for that. Yeah. Actually, vegan collagen, I think, mainly refers to substances which boost collagen production in our body. Hmm. So, things that are not actually collagen, but they boost the production of collagen, as the fibroblasts they boost to make more and more collagen. Hmm. सो ज़्यादातर वीगन कोलाजन उसको लूज टर्म में बोला जा रहा है आजकल। अच्छा अच्छा, हम्म। उसी चीज़ को ये लोग vegan collagen बोल रहे हाँ, हैं. एज सच जो पर्टिकुलर कोलाजन प्रोटीन एनिमल सोर्सेज से आ रही है, वो जो हमारे वीगन सोर्सेज हैं, जैसे चिकपीज हुआ, लेग्यूम्स हुआ, लेंटिल्स हुआ, तो उनसे एज यू सेड यीस्ट लगा के अभी इट्स इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड क्वांटिफिकेशन, एंड Hmm. इट विल टेक सम टाइम टू कम टू अस इन अ मास प्रोड्यूस्ड वे, बट यूजुअली अभी जो हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, दे आर दो सब्सटेंसेस विच विल make my body make more collagen. It will boost the collagen production in my body. Vegan collagen. Yes. और जो animal based collagen है वो directly. वो डायरेक्टली ट्राइपेप्टाइड्स भी आ रहे हैं। हाँ. हम्म। And the funniest thing about this is कि dietary supplements are just that, dietary supplements. हम्म। They're not medical supplements, they're not. Their regulation is not as the pharmaceuticals. हाँ, they do not need to disclose the source of their ingredients, they do not need to Need to disclose disclose all of their many ingredients things. either. Yes, yes. It's a really gray area. So, have you heard about a tennis player who, in the fall of 2023, was barred from match because the something was found which was a banned drug? I think it was not because of a banned drug. She had something in her system that allowed her to absorb more oxygen, which would obviously lead to her उसकी performance enhance होने को, उसके right? RBCs increase होते थे उस दवाई से, Hmm. and that when people found out कि ये इसको कहाँ से मिला, इसकी बॉडी में कहाँ से आया, तो she was taking some collagen supplement, and that thing was not disclosed on the box of collagen supplement. So this is the gray area of dietary Hmm. supplements. And the protein supplements which come in the market, a study has been there, a high percentage of protein supplements included barred substances, And heavy metals, right? Pesticides. pesticides, heavy metals, sometimes anabolic steroids, things that were not What? supposed to be there were present in the protein supplements. So this is the gray area of dietary supplements. तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बजाय कोलाजन सप्लीमेंट्स ले सकते हो, वो भी तो प्रोटीन ही होते हैं.
कोलाजन सप्लीमेंट्स और प्रोटीन सप्लीमेंट्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि कोलाजन सप्लीमेंट्स में ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड्स BR BCAA नहीं होते, ओह माय गॉड, ओके। और दूसरा इसमें ट्रिप्टोफैन नहीं होता, विच इज़ एन एसेंशियल अमीनो एसिड. Tryptophan is not manufactured in our body. हम्म, It is to be taken from outside. That is why it comes by the name of those amino acids which are essential amino acids. ओके। तो जो ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स होते हैं, दे आर वेरी नेसेसरी इन मेकिंग द मसल मास आफ्टर यू डू अ वर्कआउट. सो कोलाजन सप्लीमेंट्स लैक देम. अच्छा, बाय द वे आपको पता है, Paul Pogba was actually he is a really great footballer with really unique dribbling skill set. I think February 2023 में, और maybe October, maybe I'm remembering it wrong, but in 2023 वो भी बैन हुआ था। बिकॉज ऑफ द सेम रीजन. एग्जैक्टली उसको पता ही नहीं था कि वो जो कोलाजन सप्लीमेंट ले रहा है अपने हाँ. जॉइंट पेन के लिए, उस चीज में स्टेरॉइड्स थे। So, whoever is listening to our podcast, I think one message should come to them that your collagen supplement may contain something जो उस पर लिखा नहीं है and which is bad for your health. So, you always need to check out कि आप कौन सा collagen supplement ले रहे हो. हमारा बेचारा जॉन जोन्स ने भी यही बोला था, बट उसके सिस्टम में फिर कोकेन भी निकला था, तो उसका तो केस ही थोड़ा खराब हो गया था। I want to understand a bit more about the science of collagen loss, right? Because why is it that as you age, the collagen starts decreasing in your body? That just doesn't make any sense to me. खाना भी आप उतना ही खा रहे हो, हाँ, right? there is something called aging. एजिंग में क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर सी देयर इज़ यूथफुलनेस इन द बॉडी. पहले तो बच्चा ग्रो करता है, ग्रोइंग फेज आता है, एवरीथिंग इज़ एनाबॉलिक. आपका हर चीज़ बढ़ रही है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बढ़ रहा है, बोन्स अच्छी न्यू बन रही हैं, एवरीथिंग इज़ टेकिंग शेप एंड इंक्रीजिंग इन मास एंड डेंसिटी, एंड देन इट इज़ कमिंग टू द पिनाकल ऑफ बेस्ट ऑफ द बॉडीज. सो दैट इज़ द प्राइम ऑफ यूथ. देन व्हाट हैपन्स, धीरे धीरे करके वो जो ऊपर तक आप आ चुके थे एकदम, तो वो चीज़ें फिर अब कम होंगी. रीज़न बीइंग कि एक ऑप्टिमम लेवल तक वो चलेंगी जब तक आप चलाओगे. शादी के बाद होता है सब। ज़रूरी नहीं है. अच्छा। तो जब आप थोड़ा सा एज होना स्टार्ट करोगे या वाइज होना स्टार्ट करोगे, तो आपके जैसे पूरा जो स्ट्रक्चर स्किन का बना है, बिकॉज वी आर टॉकिंग मेनली अबाउट स्किन, तो उसमें जो कोलाजन का फॉर्मेशन है, जैसे कोई बिल्डिंग है जो बहुत सुंदर बनी है, कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद धीरे धीरे उसका पेंट हल्का होना स्टार्ट होगा. फिर हो सकता है उसके जो बीम्स एंड पिलर्स हों वो थोड़े से ढीले हो जाएं. तो ये बीम्स एंड पिलर्स हैं कोलाजन स्ट्रक्चर स्किन में. तो वो थोड़े से पहले हल्के होते हैं, ढीले होते हैं, फिर वो टूट जाते हैं, कम हो जाते हैं. ऐसे ही इलास्टिन कम हो जाता है, ऐसी डिफरेंट चीज़ें कम हो जाती हैं. तो कोलाजन फिर अगर आप रिप्लेनिश कर लोगे तो वापस बेटर हो जाएगा. तो अभी हमने बहुत सारी टाइप्स ऑफ कोलाजन्स के बारे में बात कर ली है। इंजेक्शन वाले कोलाजन, खाने वाला कोलाजन, राइट, एंड कोलाजन बढ़ाने वाला खाना। वी हैव टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप अपने एक्सपीरियंस से कौन सी एक चीज़ आप भूल गए, क्या? लगाने वाला कोलाजन भी आ गया है. ओहो, टॉपिकल कोलाजन भी आ गया हाँ, है। मैंने उसके बारे में देखा क्या ओपिनियन है आपका? मैंने देखा क्रीम्स आ रही हैं जो बोलती हैं हमारे अंदर कोलाजन है. अब कोलाजन इज़ अ बिग प्रोटीन. It cannot surpass the full thickness barrier of skin and get inside. The only help it does to the skin is improving hydration of the skin. तो अब क्योंकि हाइड्रेशन इंक्रीज हो रहा है, जैसे और भी ह्यूमेक्टेंट्स होते हैं, और भी जैसे ग्लिसरीन है, और भी चीज़ें हैं जो सेरामाइड्स हैं जो ये हमारा हाइड्रेशन इंप्रूव करता है, तो फाइन लाइंस वगैरह अपने आप हल्की हो जाती हैं, स्किन बेटर दिखती है. मोर कांस्टेंट एंड बेटर हाइड्रेशन ऑफ द स्किन. यस. सो टॉपिकल कोलाजन आपका हाइड्रेशन बेटर करेगा. वो स्किन के अंदर जाके अंदर स्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं कर सकता. तो जब आप 200 रुपीस की hyaluronic acid वाला क्रीम ले सकते हो, then why spend 1000 rupees on collagen serums? Makes sense. Right? क्योंकि at the end of the day, topical collagen will remain as a humectant and will not bond with the fibroblasts of your skin. Yes. To give skin elasticity. Correct. But I think एक isotretinoin क्रीम के साथ कोलाजन का मिक्सचर आ रहा है,
एक अच्छा। ऑइंटमेंट आ रहा है, बिकॉज द ड्राइनेस विच इज कॉज्ड बाय आइसोट्रेटिनोइन एंड द फ्लेकीनेस एंड रेडनेस, उसको ओवरपावर करने के लिए, उसमें सूदिंग इफेक्ट के लिए. सो Wait, so that दैट means कि मेक्स सेंस. collagen is a really good humectant. इट इज. It must be a better humectant than hyaluronic acid and a bunch of other things. Then अगर isotretinoin की dryness को offset कर पा रहा है वो तो. पूरी तरह ऑफसेट करेगा कि नहीं ये तो टाइम ही बताएगा. हाँ. बट hyaluronic एसिड को भी एकदम से ऐसे ऐसे नहीं फेंको, वो भी बहुत अच्छा है. वो भी बहुत अच्छा है. It's just that somebody tried to make this. Isotretinoin plus collagen का mixture जो है नया है. Have you ever tried it personally? No. अच्छा. तो this is a really new product. कोलाजन का आपको क्या लगता है किस चीज के साथ कोलाजन का अगर टॉपिकली लगाना हो तो बेस्ट कंपेनियन क्या होगा कोलाजन के लिए? सी, अगर टॉपिकली लगाना है तो हमें तो यही पता है कि वो बहुत अच्छा हाइड्रेशन करेगा. तो लगाना भी है. डिपेंड्स कि उसका कॉस्ट कितना बढ़ रहा है आपको. आपकी स्किन अगर एकदम ही ड्राई फ्लेकी हो तभी मेक सेंस करता है यूज नहीं, करना. तब और भी चीज़ें हैं जो आप लगा सकते हो. यूरिया बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, देन देयर आर अदर थिंग्स जो आप लगा सकते हो. सेरामाइड क्रीम ये सारी हाँ. चीजें हैं. अच्छा सेरामाइड्स और कोलाजन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स बट टॉपिकल सेरामाइड्स भी टॉपिकल कोलाजन की तरह होती है क्या? नॉट फुली अब्सॉर्ब्ड और डज दैट एक्चुअली गो इनसाइड योर स्किन A सेरामाइड? lot depends upon the carrier also. The लेट्स से वी आर यूजिंग अ क्रीम vehicle. एज अ कैरियर. No, not only cream. Cream is a form of product. व्हाट डू यू मीन बाय Carrier कैरियर? means the molecule which is carrying it यू with मीन the द बाइंडिंग solvent, एजेंट. the solvent of the binding agent, the अच्छा. solvent. So collagen is a big peptide, so it will not enter the skin. But ceramides, when given like with coconut oil, or the molecule is small enough, then it may seep inside and make your skin better, make your skin even more hydrated. Makes sense. Why do you think vitamin C and collagen are said to be such a great combo और हर प्रोडक्ट में कोलाजन और विटामिन सी साथ में देते हैं? लाइक आपकी जो सप्लीमेंट वाली गोलियां आती हैं जो फिज बन जाती हैं पानी में जाके सोडा बन जाती हैं वो भी ऑरेंज फ्लेवर होती हैं और सारे सिट्रस फ्लेवर होते हैं उनमें. विटामिन सी खाने की बात करें या लगाने की बात करें, क्योंकि पहले देखो, टॉपिकल की बात कर लेते हैं है ना. बट टॉपिकल आई डोंट रियली वांट टू टॉक अबाउट इट क्योंकि कोलाजन तो अफेक्ट करता नहीं है हाँ, ना. तो जब हम इंजेस्ट करते हैं विटामिन सी, तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो आता है स्किन में. एंड विटामिन सी इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन स्किन एंड बॉडी. विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, गम्स ब्लीड करते हैं, सबको पता है. तो इसका इतना इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन है इसका. देन कोलाजन को बूस्ट करता है. और विटामिन सी जब ब्लड के थ्रू स्किन में आता है ना, तो कोई भी चीज़, देखो कोई भी चीज़ अंदर आए और स्किन में सेल्स में आए, उसके कई तरीके होते हैं. जैसे उसका कोई कैरियर मॉलिक्यूल है जो उसको अपने साथ लेके आ रहा है सेल के अंदर, या फिर वो ट्रांस एपिडर्मल सेल सरफेस के थ्रू वो चला जाएगा अपने आप. उसका मॉलिक्यूल इतना छोटा है कि लाइक वो, थ्रू चला जाएगा. हाँ, अपने आप चला जाएगा. ऐसे और भी उसके कैरियर पेप्टाइड्स हैं, कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं. अलग अलग चीज़ों के अलग अलग वेज होते हैं हाउ दे एंटर द सेल. तो अब उसके अंदर उसके मल्टीपल फंक्शंस हैं. तो अनडाउटेडली विटामिन सी इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर आवर बॉडी बट ऑल्सो फॉर आवर स्किन. रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं अब हम लोग अपना. इस राउंड में वी विल फोर्स आवर गेस्ट टू गिव रियली फास्ट एंड क्विक आंसर्स विदाउट हैविंग एनी टाइम टू थिंक एट ऑल. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वन कोलाजन मिथ यू विश पीपल वुड स्टॉप बिलीविंग. कोलाजन क्रीम विल मेक माय स्किन कोलाजन इम्प्रूव. हाँ, एंड आई थिंक बोन ब्रॉथ वाला भी आंसर आ सकता है ना इसमें. कोलाजन पेप्टाइड्स और पाउडर, व्हिच वन वर्क्स बेटर? पेप्टाइड्स तो डेफिनेटली बेटर है. योर गो टू कोलाजन बूस्टिंग स्किन केयर प्रोडक्ट? आई डोंट थिंक आई एम येट स्टार्टिंग एनी कोलाजन बूस्टिंग प्रोडक्ट. बेरीज खाते हो ना आप? बट दैट इज समथिंग नेचुरल. Walnut, chia seeds, berries. फेवरेट कोलाजन रिच फूड? Ah, Walnut, chia seeds, berries. Most overrated collagen trend right now. having collagen in multiple flavors. Remember, no matter what kind of collagen you're taking, which flavor, which method of delivery, beauty is not just skin deep. Beauty is inside and outside. You need to remember to feel good in your own skin. अगर आपका मन करे तो Botox करवाओ. If you think you're happy without Botox, then that's even better. You don't have a complex. That's even better for you. And most important thing,
you need to remember during skincare is हमारी वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए, because trust me, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो then you must have found something helpful in it, right? तभी आप देख रहे हो. Please do drop a like if you actually liked it, and subscribe if you want to see more of these kinds of things. And if you watched it till here, I know you have a couple of friends who will also watch it till here, at least till here, so send this to them too. Also, we do live streaming on almost all days, researching new skincare trends, नए products जो हम बना सकते हैं, things like that. And thank you so much for tuning in with us, and remember, feel good in your own skin. Bye bye. यहाँ पे आप पाएंगे टॉप रेमेडीज फॉर ग्लोइंग स्किन, एंड यहाँ पे आप पाएंगे एंटी एजिंग के सारे सीक्रेट्स. दीज आर ऑल्सो 30-40 मिनट पॉडकास्ट जिसमें वी हैव अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू विल फाइंड ऑन द इंटरनेट. मैं पर्सनली सब चीज़ों को सर्च करता हूँ एंड देन आई कम अप विद द क्वेश्चंस टू आस्क आवर गेस्ट्स. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, प्लीज डू चेक दीज थिंग्स आउट बिकॉज ट्रस्ट मी, यू लव देम.